Bismillahirrahmanirrahim. Today, our article is on page number 6, operation of two sets. Operation of two sets, in which we shall discuss between difference of two sets, intersection, union, and symmetric difference, De Morgan's law. These are these articles are, are our in lecture. Starting from first is A difference A difference B. Number one, number two, asymmetric difference B. Number three, A complement. These are our articles which we have to discuss in this lecture. Let A is equal to ABC and B is equal to CDE. We have to find A difference B. A difference B is equal to A, B, C difference C, D and E. The answer is C is common between two. Therefore, this is to be cancelled. The answer will be A, comma B. A difference B. We have to cancel the element which is common between A and B. The rest of the element of A is written here. A, B is the answer. Okay. Now next example, same like this one. If A is equal to 1, 2, 3, 4, and B is equal to 2, 4, 6, 8, then A difference B is equal to
1, 2, 3, 4, difference 2, 4, 6, 8. Answer will be 2 and 4 are cancelled. 2 and 4. 2, 2 and 4. The answer is 3, 4. 3, comma 4. A difference B. Okay, understand? If you understand, you have to write on yes. Okay, okay. Next, again, new example. If A is equal to 2, 4, 6, 8, 10, and B is equal to 1, 2, 3, 4, 11, 2, 4, only 2 and 4 are common. Therefore, these are A difference B is equal to 2, 4, 6, 8, 10. Difference 1, 2, 3, 4, 11. 2, 4 are cancelled. The rest are 6, 8, 10. This is the answer. Okay, 2 and 4 are common. These are not to be written here. Rest of the first elements of first set must be the answer. फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स हैं बच जाएंगे वो आंसर होगा. दोनों में कॉमन कैंसिल कर दिए जाएंगे. फर्स्ट सेट में जो कॉमन बच जाएंगे, जो अनकॉमन बचेंगे, वो फर्स्ट सेट के वन जो बचेंगे वो आंसर होगा. फर्स्ट सेट में ए सेट में आपके पास क्या बचा? 6 और 8 और 10. ये 2 और 4 कैंसिल हुए. 2, 4. आंसर क्या बचा आपके पास? 6, 8 और 10. ओके, यस. नेक्स्ट बेटे, symmetric difference. Next is a symmetric difference. Symmetric difference is if A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. B is equal to 1, 1, 3, 5, 6. A symmetric difference B. This is called symmetric difference. A symmetric difference B 1, 2,
3, 4, 5. Metric difference 1, 3, 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 6. The common are 3, 5. Now the rest are, अब इनमें दोनों में जो अनकॉमन बचे थे उनको यूनाइट कर दें, कंबाइन कर देंगे। 1, इसमें 1 भी है, 1 भी कैंसिल हुआ। में 1 भी कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा? 2, 4, 6। 2, 4 और 6 जो कॉमन है वो कैंसिल हो गए। बाकी जो है उन दोनों को हम यूनियन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो आपका ये आंसर 2, 4 और 6। बेटे आपकी समझ आ गई? आपने इस तरह आप ए और बी लिखकर इस तरह आपने क्वेश्चन को लिखना है। डायरेक्ट आंसर इस तरह डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, लिखकर फिर आंसर देंगे आप। ओके बेटे, उसके बाद नेक्स्ट बेटे हम कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 up to 10. A set is equal to 1, A set is equal to 1, 3, 5, 1, 3, 5, 6, 7, 9. B is equal to 2, 4, 6, 7, 10. We have to find we have to find A complement, B complement, A complement union B complement. First we have to find A complement. To find complement we have to find difference of union of the set. Union minus A is equal to A complement. यूनिवर्सल सेट में से ए एलिमेंट के सेट को कैंसिल कर दें, यूनिवर्सल में जो बचेगा बाकी माइनस कैंसिल करने के बाद यूनिवर्सल में जो बचेगा वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 डैश 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 10 माइनस ए के एलिमेंट के आगे 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 7, 9 कैंसिल हो गए।
तो क्या आएगा 2 4 6 8 एंड 10। ये किसका आंसर आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट। ओके बेटे, यूनिवर्सल सेट में से सेट किसी गिवन सेट को के एलिमेंट कॉमन को कैंसिल कर दें, बाकी जो यूनिवर्सल में बचे वो आपका आंसर होगा। जो यूनिवर्सल में से बचे 1 3 5 7 9 इसमें से कैंसिल कर देंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? 2 4 6 8 और 10। अंडरस्टैंड? सेम फॉर बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट is equal to universal set 1 2 3 4 dash 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 10 माइनस बी सेट हमारे पास है 2 4 6 7 10। तो अब आप 2 कैंसिल हो गया, 1 3 5 1 3 5 8 6 और 7 कैंसिल हो गए, 9। ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ओके, क्या आ गया हमारे पास? बी कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दें, बाकी यूनिवर्सल में से जो बचे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके, अब हम इसका यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करने लगे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया? 2 4 6 8 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया? 1 3 5 8 9। आंसर क्या आएगा? यूनियन करेंगे तो यूनियन करने से दोनों को अरेंज करते हुए कॉमन लिख देंगे। एक दो नंबर दोनों में कॉमन आ जाए तो एक दफा लिखना है। 1 2 3 4 दोनों को यूनियन करने कंबाइन कर रहे हैं। 1 2 3 4 अरेंज करते हुए लिख रहे हैं। 5 6 उसके बाद क्या आएगा? 8 उसके बाद क्या आएगा? 8 8 9 और 10। ओके बेटे, आगे समझ? ओके, राइट कीजिए, यस कीजिए। ओके बेटे, अब हम इसी का डिफरेंस करके देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर हमारे पास ए था, हमारे पास ए हमारे पास था 2 4 6 8 एंड 10 और इंटरसेक्शन 1 3 5 8 9। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन। इज देयर एनी कॉमन? दोनों में कोई कॉमन है? देखें दोनों में, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 8। इसमें क्या है? 8। इसमें भी 8। तो आंसर क्या आ जाएगा?
आंसर आपका आएगा 8 ओनली। ओके ओके बेटे, आपकी समझ आ गई? अंडरस्टैंड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो? देखिए, मैंने आपको सिमेट्रिक डिफरेंस करवा दिया, डिफरेंस आर टू सेट करवा दिया, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस भी करवा दिया। यूनिवर्सल सेट की सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन याद रखनी है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछी जाती है। अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड डैश। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बेटे कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम किया, तो क्या आएगा? यू में से ए को माइनस करते हुए, यू के एलिमेंट 1 से लेकर 10 है और ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 जो है उनमें से कैंसिल करते हैं, बाकी आपके पास क्या बचा? 2 4 6 8 10, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ओके, इसके बाद आल्सो दिया हुआ है आगे, ये एग्जांपल एमसीक्यूज अक्सर आता है, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल डैश। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें तो आंसर क्या आएगा? ए वापस आ जाता है, क्योंकि ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 2 4 6 8 10। इस 2 4 6 8 10 को यूनिवर्सल में दोबारा माइनस करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ओके, मैं अभी इसके प्रूव करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ दो हैं, देयर आर टू डी मॉर्गन्स लॉ। नंबर 1, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दो लॉ है। नंबर 1, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट की साइन लगाए, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट is equal to A complement union B complement. This is called डी मॉर्गन्स लॉ। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन था मॉर्गन, उसके नाम पे है ये। ओके, अब आप नीचे दिया हुआ एग्जांपल दी गई है, यूनिवर्सल सेट है आपको 1 2 3 4 5 6 7 और A is equal to 1 3 5 7, B is equal to 3 4 5 6। तो वेरीफाई करना है। देखिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए और बी दिए हुए हैं, पहले हमने ए यूनियन बी मालूम करना है। पहले आप क्या करेंगे? ए यूनियन बी मालूम करेंगे, ए यूनियन बी दोनों का मालूम कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला लिखकर यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से माइनस किसको करेंगे? ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 3 4, क्या आंसर आया? ओनली 2। 1 2 3 4 यूनियन आ गया था, इसमें यूनिवर्सल में माइनस कर दिया, क्या आंसर आया अभी? ओनली 2। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में ए के एलिमेंट को कैंसिल कर दीजिए, ए यूनिवर्सल के एलिमेंट है ये, ए के एलिमेंट ये, इसको कैंसिल कर देंगे तो बाकी यूनिवर्सल में क्या बच गया? 2 4 6। इन द सेम वे यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से, ये यूनिवर्सल सेट है, ये बी सेट है, इस बी सेट के 3 4 5 6 को कैंसिल कर दीजिए तो बाकी क्या बचा? 1 से लेकर 7 में से 1 2 और 7, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये क्या आ गया? बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ गया आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो 2 आ गया।
दोनों का इंटरसेक्शन क्या किया, इंटरसेक्शन किया तो क्या आया, 2 आ गया। इसका भी आंसर राइट साइड भी 2 आ गया और लेफ्ट साइड भी आपका 2 आया हुआ था। ओके, लेफ्ट साइड भी आपका 2 आया हुआ था। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने के बाद ये दिया हुआ है, ये दोनों सेम आ गए। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसी तरीके से सेकंड ए इंटरसेक्शन बी करके देखें। पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी किया, उसको फिर यूनिवर्सल में माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट हमने पहले मालूम किया है, इन दोनों का यूनियन कर देंगे, ये वापस आ गया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, ये राइट हैंड से ये आ गई, तो ये आपका दूसरा लॉ भी प्रूव हो गया। तो अब ये हम इसको नेक्स्ट करते हैं बेटे अपनी एक्सरसाइज से। 1.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.23 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही क्वेश्चन अक्सर आता है, इसको एक एक क्वेश्चन आपने इसका करना है। देखिए मैं हम करने लगे हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर वन देखिए। ए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ आपको, यूनिवर्सल सेट। आप पेज नंबर 12 पे देखिए, यूनिवर्सल सेट 1.2 के बाद सेकंड लाइन में देखिए यूनिवर्सल ए बी सी डी। ए बी सी डी and A is equal to FACE. And B set is equal to B set is equal to EGDF. EGDF. अब बेटे इसमें देखिए यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें ए बी सी डी। अब यूनिवर्सल सेट में पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट है एफ ए सी ए सी ई ए एफ ए सी ई। यूनियन बी के एलिमेंट ई जी डी एफ।
ओके, अब इसका यूनियन क्या आएगा बेटे? इसका यूनियन आएगा ए, अरेंज करते हुए, सी डी ई एफ, ए सी डी ई एफ। देखिए, ए सी डी ई एफ एंड जी, ये आपका ए यूनियन बी आ गया। अब इसका हम ये लेफ्ट हैंड साइड किसकी करेंगे? यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ए यूनियन बी पर मालूम कर लिया है। अभी इसका हम यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनिवर्सल सेट क्या है? ए बी सी डी, यूनिवर्सल सेट हमारा जी नहीं, ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी जी एफ बी था। ए बी सी डी, ए बी सी डी एफ जी बी। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी। अब इसमें से हमने माइनस करना है ए बी सी डी ई एफ जी में से माइनस करेंगे किसको? ए सेट यूनियन को। ये आंसर क्या आया हुआ है? ए सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें हमने किसको माइनस करना है? ए सी डी ई एफ जी। तो क्या आपके पास आंसर क्या आएगा? बी। क्या आंसर आया? बी। बी इसमें नहीं है। इसी तरीके से ये हमने, अब लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। राइट हैंड साइड में पहले u माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी, माइनस ए एलिमेंट है हमारे पास एफ ए सी ई। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए एफ ए ई जी। तो बी जी आ जाएगा, बी डी जी आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी माइनस बी बी के एलिमेंट्स क्या हैं? बी के एलिमेंट्स हमारे पास, बी क्या है? ई जी एफ डी, ई जी ई जी एफ डी, ई जी एफ डी। ओके, ई जी एफ, ई जी ई जी डी एफ एफ जी, ई डी एफ जी लिख देंगे। ई जी एफ, ई जी एफ डी।
ओके, आप माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? ए बी सी। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था? ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारा बी डी जी, बी डी जी, बी डी जी। इंटरसेक्शन ए बी सी, तो दोनों में कॉमन कौन सा हो गया? बी, बी कॉमन। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा मैंने